اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو اور طاعت کے لیے کچھ نہ تھے کرے بیان محترم مانو میڈیا صاحب کے انچارج آج اس پریس کانفرنس کا دینے کا مقصد اس لیے ہوا کہ علاقے سے سب ڈویژن کے معیار و شہرت خود ہوا، جس کی مثال خطے لداخ میں سب سے زیادہ آبادی اور خوبصورت والے علاقے شروع کر سے سب ڈویژن کو سنگ ضلع کے درجے سے محروم رہا۔ ان واقعات اور حالات کو مد نظر رکھ کر جناب آنریبل کونسلر برسو شیخ غلام محمد انصاری صاحب و جناب آنریبل کونسلر تیسرو عبدالحادی صاحب و جناب سابقہ سرپنچ آغا سید حسن موسوی صاحب و جناب سابقہ کونسلر محمد اسماعیل صاحب و جناب شیخ محمد حسین صاحب سابقہ کونسلر شزگان و جناب محمد حسین سابقہ ایگزیکٹو کونسلر لنکر سے و جناب اخوند صادق سوشل ایکٹیویٹیز لنکر سے مرنبی و جناب سابقہ سرپنچ محمد علی لستق و جناب محمد الیاس کنٹیسٹ کونسلر سوشل ایکٹیویٹیز پرکاچک و جناب محمد جواد سوشل ایکٹیویٹیز سانکو و حاجی غلام مہدی چھسکور و باقی ہمارے ادھر تشریف لائے ہوئے اہل سنت والجماعت کے حفیظ صاحب و غلام محمد صاحب ادھر سرپنچ جناب غلام عباس کوچک و جناب آغاز مرتضی بھارتیہ جنتا پارٹی یوتھ کے پریزیڈنٹ و حاجی مہدی ٹنگول بھارتیہ جنتا پارٹی کے ممبر و حاجی غلام محمد بھارتیہ جنتا پارٹی کے سانکو سب ڈویژن کے لیڈر نے اپنے فریقین کے درمیان جو تلخ تھا وہ علاقے کے وقار اور ضلع کے درجے کے لیے قربانی دے کر شیرین میں بدل دیا، اور آنریبل کونسلر برسو و آنریبل کونسلر تیسرو سیاسی معزز لیڈران جن کے نام ممبرز بالا لایا گیا، ان سبوں نے بندہ حاجی غلام محمد کو بھارتیہ جنتا پارٹی لیڈر و حج کمیٹی کے ممبر کو وقت کے گورنمنٹ جناب نریندر مودی جی والے سرکار سے ضلع کے درجے کے بحالی کے لیے اپنا سربراہ با اتفاق رائے سے چن لیا گیا، اور جناب آنریبل کونسلر صاحبان اور معزز ممبران نے عزم و عہد کیا کہ جو حکم حاجی غلام محمد کو اپنے ہائی کمان سے آئے اس حکم نامے پر تمام کو عمل کرنا ہوگا، اور بندہ حاجی غلام محمد سب ڈویژن سانکو کہ بھارتیہ جنتا پارٹی آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ جناب وزیر اعظم نریندر مودی کے سب کے ساتھ سب کے وکاس و سب کا وشواس، جناب وزیر داخلہ امت شاہ صاحب و جناب بھارتیہ جنتا پارٹی کے صدر متین نوین صاحب، جناب ترنچوک صاحب و جناب اشوکول صاحب و جناب ٹشی کھچو صاحب و جناب ٹشی گلسن صاحب و جناب جمعہ صاحب و جناب حاجی عنایت علی صاحب و جناب اسد اللہ صاحب منشی و جناب عباس عابدی کے ذیل میں کوشش کر کے خصوصاً جناب وزیر داخلہ آپ نے 5 ضلع خطے لداخ کے لیے بخشایا گیا۔ اس بار بھی ہم اس علاقے جو غربت زدہ ہے، جو سب سے زیادہ گنجان ہے، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ کے پاس سمندر کی طرح اتنے لوگوں کے لیے دینے کے لیے 5 ضلع اکٹھے دے دیں، لہذا ہم
लोगों को इससे महरूम रखा गया है। मेहरबानी फरमाकर इसको हम दर्दाना गौर फरमाकर, हमारे फरियाद पर गौर फरमाकर हम लोगों को भी जिले का दर्जा सांको को दिया जाए, ताकि हम भी आपके साथ, सबका विकास आपके साथ मिलजुल कर दिल से दिल के राह बनकर रहे। और मैं खुसूसन जनाब टॉशी जलसन साहब फार्मर सीसी, उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जिले सांको के लिए अपना हद्दुल इम्कान खुलूस दिल के साथ दिल्ली में जाकर हर वजीर दाखिला, वजीर आजम, हर वजीर के साथ कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हम लोगों को भी जल्द अज जल्द उनके कोशिशों की वजह से, हमारे अपने हिमायत की वजह से जल्द ही जल्द सांको को जिले का दर्जा मिलेगा। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऑनरेबल काउंसिलर शेख अंसारी साहब, ऑनरेबल काउंसिलर अहमद हाजी साहब, साबिका ऑनरेबल काउंसिलर हाजी गुलाम अहमद हज कमेटी मेंबर आगा मर्तुजा साहब, आगा सईद हसन, शेख हुसैन बाक़ी, यंतंग सांकुना सुरुना बारसोना स्कोतखानी मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम। ननो यंतंग मीडिया पा सबसे पहले नगास शुक्रिया अदा बेत, यंतंग उनसे टाइम चंग अच्छी काली कदी के यंतंग स्कोत पे यंतंग अच्छी तरफ ने शुक्रिया। जब अच्छा सबसे अच्छे दिक्कत जम सुंदर खन पुंगती आगा सर्विस तफसीलन मोल्स नगास दो तस्दीक बसे देवंता मुफसल बसे जरत की दरिंग अच्छा काफी टाइम ना जब से यूटी लद्दाख सो में कना अच्छा कोशिश बंची गतायन खनपुर डिस्ट्रिक्ट फिला आवाज तांचियोत, लेकिन दक्षिण सकपा गारंग नती दे आवाज पे महले बना दो जगह नचंग मीटिंग चीजों से कमेटी का चोस्पिन आवास्तानिंदा ने चिचिक नारायण तो ngachas daksan haji saba dawat tang se gunda ngacha dika ngachi meeting chi daksan sapa ngachi tisra islazin ngachas daksa di faisla basin daksan पूरे खत्ते लद्दाख में सांकू सब डिवीजन ला बिलखुसूस सांकू ब्लॉक, तेसुर ब्लॉक, बरसो ब्लॉक, पूरा जो इलाका ला इकनोसुम दीव इब्तिहाद बस दी चीज पे ना इंसाफी लगाते से ज़ाला बस से कोशिश बे फिला ngacha gangma jam sonse ngati haj committee haji गुलाम अहमद ngacha di committee chairman chose khoi zere sadarat ngacha khoi jap na sak duk se ngacha di district fila ngata yan में सा परबाब इख्तिदार नयम्बो या ngati parliament member नयम्बो या gar suwa gar इख्तिदार पर gar सु LG साहब नयम्बो ngacha approach बसे ngachi di block puna developmental issues fila ngacha haji साहब साथ तंग से हाजी साहब भी जरा कायदा दुख से ngacha कोशिश बचिन तो लिहाजा ngachi सांकू ब्लॉक, तेसुर ब्लॉक, बरसो ब्लॉक पूरा सब डिवीजन आवाम ngachi गुजारिशिन ngachi di आवाज पे नंबर अंतर लब्बैक जरे सभी ngacha सपोर्ट की जरूरत हो तो मेहरबानी ngacha दुनिया तक पला ngachi di मोमेंट और हाजी साहब ngachi गुजारिशिन या रांधी के नर पला जुक्स माजुक्स पा गा का ngacha गा का सुनी दर चार गोजना चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में इधर चार गोजना यूटी गवर्नमेंट इधर चार गोजना जहां जहां आज से रिजर्व के मुताबिक पे का ngacha गामा डुल बाचा आहद बासिन दुनिया में ngacha पूरा करी ले आवाम ngacha गुजारिश बत हर पार्टी ngacha गुजारिश बत हर इदारा ngacha गुजारिश बत मेहरबानी ngachi की जेन्युइन डिमांड पला सब ngacha सपोर्ट बसे ngachi दी कोशिश पला सब सपोर्ट बचा मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है हम यहाँ पे देने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं मीडिया को शुक्रगुजार करता हूँ कि आप यहाँ पे आए, इसको कवरेज किया। आप सभी को मालूम है कि आजकल डेवलपमेंटल इशू पे जो खुसूसन हमारे सब डिवीजन सांकू में डिस्ट्रिक्ट के इशू हो और बाकी डेवलपमेंटल इशू हो, उन्हों पे हम काम करने के लिए आज हम एक बाहिनी इत्तेफाक के तौर पर हमारे तमाम यहाँ पे मुअज़्ज़िज़ शख्सियात और हमारे सब डिवीज़न के
5 सरपंच ऑनरेबल काउंसलर साहबान और मेंबर हज कमेटी जनाब हाजी गुलाम मोहम्मद साहब, बाकी तमाम आज़िज़ सामीन यहाँ पे आए हैं। हमें मीडिया पे ये कवरेज करने, इसलिए मीडिया पे हम ये लोगों तक पहुंचना चाहते हैं कि हमने डेवलपमेंटल इशू के लिए कमेटी तश्कील दी है। इस कमेटी के ज़ेर क़यादत जनाब हाजी साहब मेंबर हज कमेटी की क़यादत में हम ये कमेटी तश्कील दी है और हम अपने संघ के सब डिवीज़न के डेवलपमेंटल इशू को और डिस्ट्रिक्ट के इशू को हम जहाँ तक भी हम ले जा सके इनके क़यादत में ले जाके हम कोशिश करेंगे और कौम की मफाद और कौम की तरक्की के लिए हम कोशिश रहेंगे हाजी साहब की क़यादत में। इसलिए हमने इस मीडिया पे आप लोगों को यहाँ पे बुलाया है और लोगों तक हमारी ये आवाज़ पहुँचाने के लिए हमें ये मीडिया की वसातत से लोगों तक पहुँचाया है। शुक्रिया, थैंक यू। हाजी साहब, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है इस वक्त आपकी तरफ से देखने को मिल रहा है, खासकर सांको के डिस्ट्रिक्ट स्टेटस को लेके, आज जो है कांग्रेस के जितने भी काउंसिलर से खासकर सांको और तेसुरु की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट स्टेटस के फाइट के लिए आपके साथ देने के लिए तैयार हुआ है, तो इसको लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे और आप इस कदम को किस तरह से देखते हैं सर? आप लोग आपको बखूबी मालूम है कि हमने कितने बार सांको में लोगों को इसके बारे में दावत दे दिया था और हर वक्त हम इस दावत पर आपको ही हम दावत पर लेते थे और इसके बारे में हम सभी को यही आवाज देते थे कि हम डिस्ट्रिक्ट के लिए एक ही जगह पर, एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही टेबल पर हम सभी को जमा होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र है, आज खुदा के फजल से हमारे अक्सरियत वाले और दो काउंसलर जनाब शेख अंसारी साहब, जनाब अब्दुल साहब ने मेरे साथ देकर, उनके टीम ने मेरे साथ देकर, उनके मुअज़्ज़िज़ शख्सियत ने मेरे साथ देकर आज इसका मौका मिला। लिहाजा हम सब कोशिश करेंगे कि सांको को किसी भी हालात में जिले के दर्जा लाने के लिए हद्दुल इम्कान कोशिश करेंगे। इसलिए इन लोगों का भी हम बहुत मशकूर हैं कि इन्होंने बर वक़्त आकर खुद इधर पहुंचकर उन्होंने कहा कि हम इस वक्त आपके आवाज पर हम भी लब्बैक कह रहे हैं और आपके साथ शाना बशाना हम चलने के लिए तैयार रहे। लिहाजा आप आगे बढ़ो, हम आपके पीछे रहेंगे। इसीलिए इस आज के दिन हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, बहुत मुबारक का दिन है। यही है साहिल साहब। डिस्ट्रिक्ट स्टेटस को लेके बात करें या खासकर सांको डिग्री कॉलेज को लेके बात करें तो सीसी कारगिल और सांको के जो काउंसिलर आगा सईद अहमद रजवी ने जो है लोगों से इस तरह के वादे किए थे कि खासकर जो है डिग्री कॉलेज को लेके और डिस्ट्रिक्ट स्टेटस को लेके अभी तक जो है नाकाम रहा है, तो इसको किस तरह से देखते हैं? क्या आप सिर्फ बातें ही करेंगे या इन मुद्दों के ऊपर काम करेंगे? देखो साहिल साहब, हमने डिग्री कॉलेज के बारे में, डिग्री कॉलेज का बात करें, डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल के ऑफिस में हम लोग गए थे, आगा सिद्ध मुर्तजा साहब ने और हमारा मंडल प्रेसिडेंट सादिक अली सांको, तो उनके ऑफिस में जाकर उन्होंने हम लोगों को कहा, इस तरह कहा कि ये डिग्री कॉलेज के बारे में आप लोग आगे तक जाने के लिए कोशिश करो। उस वक्त तक बरादर अजीज हमारा आगा सईद अहमद जो है वो एरान में था। हम लोगों ने कहा कि मुकामी काउंसलर जो है वो हमारे साथ होना चाहिए क्योंकि उसका जो आवाज है वो असर अंदाज रहेगा। लेकिन उन्होंने कहा चलो आगा सईद अहमद का हम इंतजार करेंगे, लेकिन हमारे इधर कुछ प्रॉब्लम है। हाजी अब्दुल गफ्फार के जो खेत के कूल पर एक सिविल का ब्रिज जैसा बनाना था गाड़ियों को क्रॉस करने के लिए, क्योंकि प्रिंसिपल और लेक्चरर का गाड़ी उधर नहीं जा सकता था। फिर हमने उसी वक्त आकर एग्जाम वैली को
हमारा काउंसलर अब्दुल साहब भी था, उनके पास जाकर उन्होंने जेई को भेजकर उसी वक्त बनाकर उधर गाड़ी को जाने के लिए रास्ता बनाया। दूसरा कहा इन्होंने कि हम लोगों को गाड़ी का किराया जो है, बस का किराया जो है गरीबों को अदा नहीं कर सकता है, लिहाजा उसके लिए आप लोग कोशिश करो। फिर मैं जाकर जनाब चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर डॉक्टर जाफर के पास जाकर कहा कि इस तरह से हमको डिग्री कॉलेज के लिए प्रॉब्लम है और जो फंड्स है वो करगिल से अते के तौर पर दे रहा है, करगिल डिग्री कॉलेज से, लिहाजा अलावा फंड जो है सांको के कॉलेज के लिए अलग दे दो, करगिल के डिग्री कॉलेज के लिए अलग दे दो कहकर फिर उन्होंने कहा मैंने करगिल से देने के लिए कोई भी आज तक हमारे रिकॉर्ड में नहीं रही, डायरेक्ट सांको को हमने फंड रिलीज किया है। और कहा बस का मसला जो है, बस का किराया उनके पास नहीं है क्योंकि ये सारे बच्चे जो है गरीब है, बस का किराया अदा नहीं कर सकता है। तो उस वक्त डीसी साहब को लाकर उन्होंने कहा कि फिलहाल बस चलाओ। डीसी साहब ने कहा बाद में हम इनके स्कॉलरशिप से काटेंगे, तब तक इनसे किराया नहीं लेना, बस चलाने दे। तो फिर उसके बाद ले जाने के लिए एलजी के पास जाने के लिए हमने आगा सैयद अहमद साहब ईरान से पहुंचा, तो हमने बच्चों को कहा आपका आगा सैयद अहमद भी पहुंचा है, हम तैयारी करेंगे, आगा साहब को भी तैयारी करो। उस दौरान उन्होंने जनाब काउंसलर बरकत आगा सैयद हुदा को अपना नुमाइंदा बनाकर लेह भेज दे दिया। डिग्री कॉलेज के शायद यही स्टूडेंट ने भेजा होगा, उन्होंने कहा लेह में जाकर कि मैंने एलजी साहब के साथ बात किया है और सारा मसला हल होने वाला है। तब से हमारे साथ कोई इनका ताल्लुकात भी नहीं है। हमने सोचा कि आगा साहब ने मसला हल क्या होगा, तब से हमने दखल अंदाजी भी नहीं किया, यही बात तो है बस। सीसी डॉक्टर जाफर आखुन जो है जितने भी भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर से उनसे मुलाकात कर रहे हैं, और एक तरफ जो है आप और खासकर जो कांग्रेस के काउंसलर थे वो भी डिस्ट्रिक्ट स्टेटस को लेके फाइट करेंगे। क्या एक होके इस डिस्ट्रिक्ट स्टेटस को लिए फाइट कर नहीं सकते आप? जी, हमने इस वक्त हम सब, आपको पता है, चलो आपने बोला डॉक्टर साहब दिल्ली में है, डॉक्टर साहब पिछले 3 साल से सीसी रहा है, अभी तक हम उम्मीद कर रहे थे डॉक्टर साहब कुछ ना कुछ करेंगे, सारा चीजें नहीं हुआ, तब हम मजबूर हो गया हाजी साहब को। आज हमने हाजी साहब की क़यादत में एक टीम बनाया है, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि डॉक्टर साहब भी हाजी साहब को सपोर्ट करेंगे, सब साथ देके इस डिस्ट्रिक्ट की इश्यूज को हल करेंगे। जी बिल्कुल, बराबर जाएंगे हम। जी, तो मेन मुद्दा अभी डिस्ट्रिक्ट स्टेटस को लेकर, हाँ, मेन मुद्दा हमारा डिस्ट्रिक्ट स्टेटस को लेके है, इसीलिए हमने कई बार मीटिंग करके हाजी साहब को हमने तैयार किया है। हाजी साहब की क़यादत में हम चाहे यूटी गवर्नमेंट के पास जाना पड़े, चाहे हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना पड़े, हमने जाना है। देखिए, हमने पहले बोला, आज तक हम उम्मीद कर रहे थे कि हमारे सीसी साहब यहाँ काउंसिल में है तो करेंगे, तो नहीं हुआ, लास्ट पहुंचा, तो अब हमें मजबूर हो गया। इस वक्त हम सब एक प्लेटफॉर्म पे आके हाजी साहब को हमने जुजू करके हाजी साहब को आगे करके हम कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह उम्मीद है जल्द हमें ये चीज मिल जाएंगे। जी जी जी।